Hello everyone, hope you're doing great. So today we wanted to discuss this article that came in Indian Express, dated 20th January 2022. Now this article is on the very famous case that is right now in front of High Court, that is the debate over marital rape. Now it says that Delhi High Court is hearing a challenge to the validity of IPC provision for marital rape immunity. So we have to understand what is marital rape immunity and why this provision in place, what right does it infringe on, and what are the arguments before the court. So this is all discussed in this article. This article is very beautifully written and it will help you understand this topic more clearly. So first of all, this article explains us ki what this case is about. तो problem क्या है? What is happening right now is that the High Court is trying to understand by the means of four petitions that are filed in High Court to understand whether this exception to section 375 of the IPC that deals with rape. So this was an exception in IPC 375, and the petitioners are All India Democratic Women's Association, and the court will also be hearing amicus curiae Rajshekhar Rao and Rebecca Johnson, who are senior advocates in this case. Now, to understand what is IPC section 375, 375 typically deals with rapes and cases of rapes. So it defines rape as and lists seven notions of consent that, so vitiated means destroyed or disturbed, would constitute an offense of rape by the man. Now, इसके अंदर what we have to understand is that sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape. So this was the exception that was provided in this section. So this allows a marital right to a husband who can, with legal sanction, exercise this right to consensual or non-consensual sex with his wife. This is the problem that is happening, right? So now this is being challenged as unconstitutional as it undermines the consent of a woman based on her marital status. So if a woman is married, then the husband will have a right to a consensual or a non-consensual sex. So this is the problem, non-consensual sex. Because in every other condition this would be considered as rape, but in case of marriage, this is not considered as rape. Now let us understand what this provision let us understand this article tells us why this provision is placed in the first place. ऐसा पहले से क्यों है? So there are two reasons for this. ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो reason है. First reason ये था, this is constant in perpetuity. That means कि ये क्या हो रहा है कि what happens, what they're trying to explain is that in a marriage, what happens, a woman gives consent held by her husband in perpetuity, which she cannot retract unless and until the marriage is ended. So that means शादी के बाद a woman gives consent to her husband जब तक वो शादी रहती है, एंड शी कैन नॉट रिट्रैक्ट, वो ये चीज़ हटा नहीं सकती, शी कैन नॉट रिट्रैक्ट दिस कंसेंट. मतलब अ मैरिज टिपिकली मीन्स अ मैरिज इज इक्वल्स टू, what this means is marriage is equals to consent. What this typically means, constant consent in perpetuity, मतलब जब तक शादी है तब तक कंसेंट भी रहेगा. This consent is colonial. What they are saying is this concept entirely, जो concept है ये, वो एक colonial era का law है and has roots in the antiquated idea that woman is the property of a man. So ये idea कहाँ तक चलता आ रहा है कि जब एक औरत को एक आदमी की प्रॉपर्टी माना जाता था, वहाँ से इस इस colonial era law को उठाया गया है. So this is also they want to be considered null and void. Second is expectation of sex. Second thing that this the problem is that expectation of sex. This is the assumption that a woman is duty bound or is obligated to fulfill the sexual responsibilities in marriage, since the aim of marriage is to procreation. Now this will also be challenged further. वो बताया जाएगा कि क्यों ये चीज़ भी गलत है.
You have to understand that since the husband has a reasonable expectation of sex in marriage, the provision implies that a woman cannot deny it. So this is very problematic statements, and both of these statements are being challenged in the court of law. First of all, marriage also does not equal to expectation of having sex. Second, marriage does not directly means consent, and the second is marriage does not mean expectation of having sex. Now, what they are saying is that this was something that is a little bit tricky to understand. There are reasons for not outlawing this provisions, and these are crucial to understand because 2010 के एक पेपर में ये समझाया गया था कि ऐसा क्यों है, बिकॉज preservation of the institution of family is what mainly allows the provision to gain legitimacy. इंडिया के कानून में इसको लेजिटिमेट इसलिए घोषित किया गया है बिकॉज द प्रेजर्वेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, बिकॉज इंडियन लॉ और इंडियन कस्टम्स एंड वैल्यूज गिव वेरी मच इंपॉर्टेंस टू द फैमिली वैल्यूज और प्रेजर्वेशन ऑफ फैमिली. दैट्स वाई ये अभी तक चल रहे हैं ये दोनों चीज़ें. And it rules out any possibility of false, fabricated, and motivated complaints of rape by wife against her husband. So ये completely ना rule out कर देता है इसी factor को कि ऐसा wife कभी कर ही नहीं सकती. And the pragmatic procedural difficulties that might arise in such legal proceeding. मतलब जो pragmatic procedural difficulties जो arise हो सकती हैं लीगल प्रोसीडिंग में, वो इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ हैपनिंग. मतलब ये मेंटालिटी अगर रहेगी तो ये लॉ, मतलब ये चीज़ हिंड्रेंस कर रही है फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन. अब ये बताएंगे आगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से कि अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे कॉलोनियल रूल था, क्या वहाँ पे अब ये लॉ चल रहा है कि नहीं. तो दे आर सेइंग दैट एक्सेप्शन वाज ओवरटर्न्ड इन ऑल कंट्रीज बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन 1991. सो कनाडा में 1983 में ये चीज़ हट गई थी, साउथ अफ्रीका में 93 में ये चीज़ हट गई थी, ऑस्ट्रेलिया में 81 ऑनवर्ड्स ये चीज़ हट गई थी. एनेक्टेड लॉज दैट क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप. Right. So they say that they enacted laws that criminalize marital rape. So in सारी countries ने, for example Canada, South Africa, Australia, enacted laws that criminalize marital rape. So आपको हिस्ट्री भी पता चल गई कि all the other countries which had colonial rules they have also criminalized marital rape. Now let us understand argument क्या है कोर्ट के सामने to put forward. तो कोर्ट कह रहा है कि the challenge to marital rape has been possible because of slew of सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. तो हाँ, क्यों ये चैलेंज हुआ है इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने रूलिंग्स थे उसके बेसिस पे 2017 में जब आधार रूलिंग दैट सेंटर्ड ऑन द राइट ऑफ प्राइवेसी, 2017 में रूलिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की दैट स्टक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जब हटा था, उसके बाद द लॉज कैन नॉट बी मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी. सो ये जो आपने दो देखे दीज वर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी. सो दैट मीन्स दैट कुछ वैलिडेशन हो सकती है इसमें कि येस द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर देम नल एंड वॉइड. सेकेंड थिंग इज इसके अंदर आईपीसी सेक्शन 377 जब सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज इट क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी. 2018 में जब डीक्रिमिनलाइज हुई अडल्टरी, एंड 2018 में जब सबरीमला केस टेम्पल एंट्री जो बैन थी पहले महिलाओं की, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो दैट मीन्स एक रे ऑफ होप मिली कि इस लॉ को भी डी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा. सो अब क्या है इनका आर्ग्यूमेंट, क्या है जो पिटिशनर्स हैं इनका आर्ग्यूमेंट क्या है ये सुन लेते हैं. ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट इसमें आया है तो मतलब फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल रूल्स कहीं पे ब्रेक हुए होंगे, बिल्कुल ब्रेक हुए होंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे ब्रेक हुए हैं. सो दे आर सेइंग कि ये जो मैरिटल रेप इम्यूनिटी है, ये जो लॉ पहले से बना हुआ है, ये अगेंस्ट है सर फंडामेंटल राइट्स के. तो सुप्रीम कोर्ट पूछता कौन से फंडामेंटल राइट्स, तो इन्होंने बोला राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, right to life with dignity, right, and then right to personhood, right to sexual and personal autonomy,
ऑल फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21। तो मतलब आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी करता है इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं दिस लॉ ऑफ मैरिटल रेप इम्यूनिटी। नाउ अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, ऑल राइट। सो एक और चीज़ जो ये कह रहे हैं, सेकंड पिटीशन जो इन लोगों की है, जो तर्क इन लोगों ने प्रेजेंट किया है, इज दैट इट इज़ अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन। तो ये कह रहे हैं by corollary taking away the right of married women to give consent to sexual activity। तो मतलब ये कह रहे हैं कि why are you distinguishing between a married woman and unmarried women? Because they're saying कि consent is the most important thing that needs to be present, and ये distinguish नहीं होना चाहिए between a married or an unmarried woman. A rape should be considered a rape whether it's with a married woman or an unmarried woman based on the idea of consent. सेकेंड थिंग इज दैट, थर्ड थिंग आई एम सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने पिटीशन में लिखा है कि दैट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इवन ड्यूरिंग इन बिटवीन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और एन एक्ट द असम्पशन ऑफ कंसेंट इन परपेचुइटी, कॉन्सेप्ट इन परपेचुइटी कैन नॉट बी लीगली वैलिड। तो वो बोल रहे हैं कि जब ये एक एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी लीगली वैलिड नहीं है, तो how can this be valid and not irrevocable? The petitioners have argued that even though that there is reasonable expectation of sex from a sex worker or other domestic relationships as well, consent is not irrevocable। मतलब सबसे important चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब वो consent है, तो फिर when there is when there is a reasonable expectation कि जब एक सेक्स वर्कर से भी या फिर एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में भी देर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ हैविंग सेक्स, देन कंसेंट को हम इररिवोकेबल नहीं मानते। तो फिर इस लॉ में क्यों कंसेंट इररिवोकेबल हो गया? जस्ट बिकॉज अ वुमेन इज मैरिड। उसके बाद जजेस सॉट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्स इन अ मैरिज एंड सेक्स विद अ सेक्स वर्कर। ये this has been presented by the judges कि there needs to be a distinguish between this factor between sex between a marriage, sex in a marriage and sex between a sex worker. Second thing, what they are saying is distinction is based on, ये अपना जो distinction ला रहे हैं, it is based on the idea that marriage must lead to procreation. So what they're basing this idea on is that marriage should lead to procreation, which is also a little bit, I should say, on the gray area. This law prompts the question as to whether the law can delegitimize sexual consent of a woman in the favor of procreation while also recognizing an exception, that is the right to abortion. So they say कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, as procreation आप बीच में कैसे ला सकते हैं, when you are giving the right of abortion to women, that means that you are favoring procreation while also giving the right of abortion to women. So that means यहाँ पे एक duality होगी law के अंदर, which can which can always be questioned, right? So what the next they are saying, what next point they're putting forward, जो वो कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि whether this protection of marriage and family can be compelling or even legitimate interest of the state to the extent that it can make laws that can violate the fundamental rights। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये कह रहे हैं कि चलो स्टेट अगर बोलता कि हम नेशनल सिक्योरिटी पे बात है या फिर पब्लिक हेल्थ पे या पब्लिक ऑर्डर पे बात है, तो कोर्ट एक बार देख भी सकता था कि येस वेदर टू डीक्रिमिनलाइज और टू क्रिमिनलाइज। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एंड फैमिली क्या एक कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट बन पाएगा? बिकॉज इट्स एन आर्बिटरी फिनोमिना जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बोल रहा है। तो कैन दिस बी प्रोटेक्टेड? जबकि ये नेशनल सिक्योरिटी पे बात नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर पे बात नहीं है। सो हाउ कैन दिस आर्ग्यूमेंट बी प्रोटेक्टेड? द आर्ग्यूमेंट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एंड फैमिली। नेक्स्ट थिंग जो हमें समझनी पड़ेगी इसके अंदर कि गवर्नमेंट का इसमें स्टैंड क्या है। सो नाउ देयर इज पॉलिटिक्स एट प्ले दैट हैपेंड, एंड गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो आपको अभी दिखेगा इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट्स स्पैन फ्रॉम प्रोटेक्टिंग मेन फर्स्ट ऑफ ऑल टू पॉसिबल मिसयूज ऑफ लॉ बाय वाइफ्स। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट प्रोटेक्शन फॉर मेन, एंड
there is a possibility of this law can be misused by the wives. Now protecting institution, and second thing what they're saying is they want to protect the institution of marriage. So दो चीज़ें आपको समझ में आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टिंग मेन अगेंस्ट improper usage of this law or misuse of this law by the wives, and the second thing is protection of institution of marriage. Now what they saying is कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी भी इसको रिव्यू कर रहा है, all the criminal laws in the country, so they are still awaiting this report. नेक्स्ट थिंग जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ये तो हमने सेंटर की बात की, द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग दैट इट इज डिफेंडिंग दिस लॉ. अब ये इस लॉ को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? इट इज डिफेंडिंग ऑन द लॉ ऑन द ग्राउंड दैट मैरिड वुमेन हु माइट बी सब्जेक्टेड टू रेप बाय देयर हस्बैंड, उनके पास अदर लीगल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सच एज फाइलिंग फॉर डिवोर्स कर सकते हैं वो, या फिर अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दे कैन अप्लाई ऑन देयर हस्बैंड्स. So in case Delhi government is also defending this immunity of marital rape. It has also said that since law on restitution of conjugal rights, a provision in Hindu Marriage Act allows the court to compel a spouse to cohabit with the husband, it is valid so as the exception to marital rape by extension. So ये कह रहे हैं कि जब आप किसी को कंपेल कर सकते हैं स्पाउस को रहने में साथ में, सो दिस एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप बाय एक्सटेंशन, तो ये मतलब अपने आप में ये एक एक्सेप्शन हो रहा है ना मैरिटल रेप का, कि जब आप किसी को फोर्स कर रहे हैं साथ में रहने के लिए, देन यू आर ऑल्सो टेलिंग देम दैट since they are cohabiting they also should be having sexual intercourse. So that means that it is itself an exception to marital rape. So what they're saying is, however, restitution of conjugal rights is a provision in personal laws and not in penal laws, and even that provision is currently under challenge before the Supreme Court. So इसका इसका जो वितर्क इन्होंने प्रेजेंट किया वो ये था, इसका जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने प्रेजेंट किया वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप बोल रहे हैं बात हिंदू मैरिज एक्ट की, इट्स अ पर्सनल लॉ. दूसरी चीज़ ये पीनल लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर जो प्रोविजन है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कोहाबिटेशन की, वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है. सो दे हैव प्रेजेंटेड दिस आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट इज they are saying that homosexuality under section 377 governments have preferred continuity and showed reluctance in doing away with such provisions. कि मतलब 377 से पास्ट केसेस चैलेंजिंग होमोसेक्सुअलिटी, गवर्नमेंट जो थी वो रिलक्टेंट थी टू शो एंड डूइंग अवे विद सच प्रोविजंस, बट दे आर ऑल्सो चैलेंजिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अब क्या है, इन्होंने बोला दिस वन मोर थिंग एट प्ले. जो पॉलिटिक्स हमने देखा, हमने सेंटर का देखा, वी सॉ कि दिल्ली गवर्नमेंट इसमें क्या चाह रहा है. थर्ड थिंग लेट इज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 2013 में जब जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी आफ्टर दैट निर्भया रेप केस, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप को एक्सेप्शन हटाना चाहिए, मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है वो भी हटना चाहिए. उस समय क्या था, जो कांग्रेस की सरकार थी, द प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशंस बाय द कमेटी को कांग्रेस सरकार ने कुछ को तो इम्प्लीमेंट किया था, बट दिस वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट 2013 में जब जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट थी उसके तहत. बट राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग, रिसेंटली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज ट्वीटेड इन फेवर ऑफ striking down marital rape immunity. मतलब now they are favoring, now they are saying कि this should be strike down, but when in 2013 they had a chance, they did not strike it. So this shows a duality of the opposition party that was present. Now what we have to see is that petitioners have argued that since the provision was inserted before the constitution came into force, the provision cannot be presumed to be constitutional. कि मतलब सिर्फ वो प्री कलोनियल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से भी पहले बना है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, मतलब इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू बी इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हम इसको प्रिज्यूम नहीं कर सकते. सेकंड, इसके अंदर जो लास्ट चीज़ है वो ये कही गई है कि बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन इस बात से है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फेक केसेस अगेंस्ट मेन अराइज हो सकते हैं, एंड दैट इज़ अ जेन्युइन पॉसिबिलिटी दैट कुड हैपन. बट व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि गवर्नमेंट जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि
टू प्रिवेंट मिसयूज, क्या वो एक ब्लैंकेट लीगल इम्यूनिटी दे दे फॉर मैरिड मैन अगेंस्ट मैरिटल रेप? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, जो लॉ है वो कहता है कि यू मे I mean the law says that you can give freedom to 100 people who are criminals, but you cannot put one man who is innocent behind bars. So that is what the law says. So false acquittal जो होगा वो भी एक चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी. फॉल्स एक्यूटल का मतलब कि अगर सही में किसी ने रेप किया है, सो ही शुड नॉट बी फ्री. तो पहली चीज़, जो बेबुनियाद केसेस हैं, जो फॉल्स रेप केसेस हैं, वो नहीं होने चाहिए. दूसरा, फॉल्स एक्विटल नहीं होना चाहिए. मतलब जो जिसने सही में क्राइम किया है उसको फ्री नहीं होना चाहिए. सो बाय कोर्ट्स ऑफ फॉर लैक ऑफ एविडेंस टू काउंटर द नैरेटिव ऑफ फॉल्स कन्विक्शन. सो मतलब सिर्फ फॉल्स कन्विक्शंस का जो नैरेटिव है उसको फॉल्स एक्विटल से हम तोल के सिर्फ एक नैरेटिव जो क्रिएट हुआ है सिर्फ लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हम किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते. सो व्हाट दिस इज व्हाट द कोर्ट इज सेइंग. नाउ एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं इसमें वो ये कह रहे हैं कि फ्लैग्ड मैसिव अंडर रिपोर्टिंग की, वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल क्राइम्स में ऑलरेडी इतनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, तो मिसयूज़ का जो आर्ग्यूमेंट है वो एग्जैजरेट हो रहा है मेरे ख्याल से. जो ये लोग कह रहे हैं कि मिसयूज़ होना तो इसका बन ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग ऑलरेडी इतनी चल रही है इन केसेस में. इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, मतलब बेस्ट एग्जांपल जो आप एग्ज़ाम में भी इनफैक्ट आप ये लिख सकते हो, इज़ दैट इन 2010 साउथ अफ्रीका केस suggested that even though 18.8% of women were raped by their partners on one or more occasions, the rates of reporting and conviction remain low and that judges regarded it as लेस सीरियस फॉर्म ऑफ रेप. मतलब मैरिटल रेप को साउथ अफ्रीका में लेस सीरियस फॉर्म ऑफ रेप कहा गया. इसकी वजह से जो 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 केसेस थे जो वहाँ पे हो रहे थे वो वेरी लो थे. जितने केसेस वहाँ पे रिपोर्ट किए जा रहे थे, 18.8% केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, बट उससे भी कम कन्विक्शंस थी बिकॉज ऑफ दिस दैट द जजेस फेल्ट दैट ये लेस सीरियस फॉर्म ऑफ रेप है. नाउ साउथ अफ्रीका in fact passed a special legislation in 2007 that clarified that relationship between the accused and the complainant. That clarified the relationship between the accused and the complainant. This is not necessary. What is necessary is this, the example 2010 का example साउथ अफ्रीका का, कि 18% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बट उसमें से अगर बहुत कम केसेस जो हैं जिसके अंदर कन्विक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में. सेकेंड एंड द फाइनल थिंग जो इसमें पुट की गई है वो ये कही गई है, जस्टिस वर्मा कमेटी की कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे इसके अंदर जो पुट कर सकते हैं आप, विच वर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रोफेसर सैंड्रा फ्रेडमैन, जिन्होंने कहा था ये कि ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी प्रोवाइडेड टू इंश्योर दैट ऑल लेवल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम and ordinary people are aware that marriage should not be regarded as extinguishing the legal or sexual autonomy of wife. कि मतलब सिर्फ मैरिज का मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ सेक्सुअल एंड लीगल ऑटोनॉमी ऑफ वाइफ को आप एक्सटिंग्विश ही कर दें. सो दिस इज द फाइनल एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स. ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी, एंड की सोसाइटी एथिक्स सब में इस्तेमाल हो सकता है. दिस कुड बी वेरी वेल यूटिलाइज्ड इन ऑल दी सेक्शंस, and for general studies also this could be a very good question that could come in the exam. So this was the video. Thank you everyone. If you liked the video, do share and subscribe the channel for more such videos like this. We will be coming in future with more videos like this. Thank you and keep supporting us. Thank you everyone.